Hello, my dear students. I am very happy that at least I am able to make this presentation for all of you. And second thing, I pray to my God for everyone that God gives you good life, good health, good foods, and keeps us from this pandemic coronavirus. Today I will discuss about class 8 standard science, crop production and management. I made this presentation for all of you is a basic simple sum methods. You can read from your books. There are lots of description described there, but I made this presentation is a very simple methods. So first, okay, first things, कंटेंट चैप्टर 1. हमारा जो चैप्टर है इसमें कंटेंट में क्या क्या है. फर्स्ट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. नंबर 2, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. नंबर 3, preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation. And number 7, protection from weeds and harvesting. Basic 8 simple ways for practicing cultivation. Okay, so let's start. Number 1. Yeah. So what is the crop? ये crops क्या होता है? Simple the answers. You can see there photos. I added photos. Okay. Answer is when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crops. जब कोई plants को एक ही तरीके से होता है, उसको क्या एक जमीन में लंबा से बड़ा करके उसको जब रोपता है, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं. मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों को कंबाइन करके बोलूँगा तो हम लोगों को समझ में लेके इजी हो जाएगा. सो व्हाट इज क्रॉप्स? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट्स कॉल्ड क्रॉप्स. नेक्स्ट, नंबर 2. I added here some photos. Crops. A farmer is very happy for cultivated the crops. You see there some crops are there large scale. They planted. Next. 2 types of crops. Crops कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है. Number 1 is खरीफ crops and rabi crops. इसको याद रखना है. Keep it in your mind. Crops are 2 types: kharif crops and rabi crops. So what are kharif crops? Kharif crops क्या है? Kharif crops, they are generally planted in June and harvested in October. They are generally planted in June and harvested in October. इसको रोपते हैं कब? जून में, और उसको हार्वेस्ट करते हैं कब? अक्टूबर. दैट्स मीन जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 months. Rice, maize, cotton, groundnuts, all example of खरीफ crops. ये जो होता है crops, खरीफ crops, rice, maize, groundnuts, cotton, they are example of खरीफ crops, जो जून से लेकर अक्टूबर तक उसको हम लोग रोपते हैं. रबी crops. What are rabi crops? Rabi crops, they are generally planted in November and harvested in April.
उसको नवंबर में उसको पौधा कर दिया जाता है और उसको हार्वेस्टेड करता है अप्रैल में. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, it will take 6 months. What are those examples? Wheat, barley, pea, and gram are example of rabi crops. Okay. Next. Yeah, you can see here crops. And very easily, crops are two types: kharif crops and rabi crops. Generally show in rainy season. बारिश का समय जब होता है तब उसको रोकता है. मंथ ऑफ जून टू सितंबर, इसे समय. एग्जाम्पल में क्या है? राइस, कर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंड नट्स एंड कॉटन. उसके बाद आते हैं हम लोग रबी क्रॉप्स में. शॉन इन विंटर सीजन, जब ठंडी का मौसम में उसको रोकता है. मंथ ऑफ अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से लेकर मार्च के अंदर उसको रोकता है. एग्जाम्पल क्या है? व्हीट, ओट, चिकपी, मस्टर्ड, आलमंड एंड ब्रोकोली. Okay. Now let's start basic practices of production. कैसे हम लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको क्रॉप्स को प्रोडक्शन करने के लिए. नंबर 1 कल्टीवेशन. कल्टीवेशन क्या है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज. These activities are referred as agricultural practices. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कल्टीवेशन. जैसा हम लोग बोलते हैं हिंदी में खेती बाड़ी, हम लोग सुनते हैं तुम लोग बोलते हो जो हिंदी में खेती बाड़ी करते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलता है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दैट मीन्स कल्टीवेशन. सो दीज एक्टिविटीज आर किसको? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. नंबर 1 कीपिंग एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस एक्टिविटीज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना. शोइंग मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? बोबाई. एडिंग मैनूर एंड फर्टिलाइजर, मैनूर को क्या बोलते हैं हम लोग? खाद. और फर्टिलाइजर को बोलते हैं उर्वरक. इरिगेशन मतलब सिंचाई. नंबर 5 प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. वीड्स मतलब क्या है? तो मातम, जिसको बोलते हैं तो कभी कभी जंगली गाछ हो जाता है. उसके बाद होता है हार्वेस्टिंग, काटना. और लास्ट में स्टोरेज, उसको एक जगह पर स्टोरेज करके रखना है. 7 ways for active practices of cultivation: preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. Let's start. Preparation of soil. मिट्टी को कैसे तैयार करना है? The large pieces soil present in plowhead field are called crumbs. Crumbs मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ा. इसका टुकड़ा होता है मिट्टी का. मिट्टी को जो उसको क्या है? छोटा सा पत्थर के जैसा छोटा छोटा टुकड़ा रहता है. The large pieces, कभी कभी बड़ा बड़ा भी pieces होता है, present in plowhead field are called crumbs. These are broken into smaller particles with the help of a plunk. This is called preparation of soil. देख रहे हैं हम लोग इस फोटो में ट्रैक्टर क्या कर रहा है? उसको प्रिपरेशन, सॉइल को प्रिपरेशन कर रहा है. ठीक है, उसको मिट्टी को उसका जो हार्डनेस है उसको थोड़ा सॉफ्टनेस कर रहा है. कैसे उसको कर रहा है? जो मिट्टी में जो टुकड़ा रहता है बड़ा बड़ा, उसको पीस पीस करके छोटा छोटा करता है. ओके, डस्ट की जैसा करता है. नेक्स्ट, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. नंबर 2 इज सोइंग. इज अ वंडरफुल फोटोज. व्हाट इज सोइंग? Sowing is when the farmers put seeds into the soil they have plowed. जोत देने के बाद क्या करते हैं? सोइंग मतलब होता है क्या? उसको बोवाई, उसको रोपना. कैसे? Sowing is when the farmers put seeds, बीज को
जब उसको रोपते हैं इसमें इनटू द सॉइल, मिट्टी के अंदर। द सीड्स आर देन कवर्ड विथ सॉइल एंड वाटर। उसके बाद क्या करते हैं, इस छोटा बीज को मिट्टी से कवर कर देता है और उसके बाद उसमें पानी दे देते हैं। नंबर 3, द सीड्स आर देन लेफ्ट टू ग्रो, और उसको छोड़ देते हैं बड़ा होने के लिए। नंबर 4, इट नीड्स 3 थिंग्स टू हेल्प इट ग्रो, और उसमें उसको 3 चीज़ उसको बड़ा होने के लिए हेल्प करता है, किसको, क्रॉप्स को। वाटर, soil and sunlight. Sunlight is very important for photosynthesis. So it needs 3 things to help it grow: water, soil and sunlight. Next, plowing is a modern technology and old technology. Plowing, the process of losing and turning of the soil is called tilling or plowing. The process of losing and turning, उसको लूज करना है और उसको मोड़ना है, of the soil is called tilling or plowing. देख रहे हैं हम लोग एक किसान वो कर रहा है, और इधर एक हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर से कर रहा है। बहुत आर सेम। क्या करना है, उसको कल्टिवेट करना है। दे आर प्लाउइंग, इट्स कॉल्ड प्लाउइंग। ट्रैक्टर क्या कर रहा है, वो भी प्लाउइंग कर रहा है, और जो किसान है मैनुअल जैसे होता है वो भी प्लाउइंग कर रहा है। सो इट्स द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, मिट्टी को लूज करना और उसको मोड़ना, उसको क्या बोलते हैं, प्लाउइंग। Adding manures and fertilizer is one of the most important things for cultivation. Adding manure में बोला उसका मीनिंग क्या है, खाद जिसको बोलते हैं। Manure and fertilizer both are same but little bit difference. Plants require food, nutrients, elements for its growth and development. Plants का किसका ज़रूरी होता है, खाना का। जैसे हम लोग खाते हैं, हम लोग को भी प्रोटीन का ज़रूरी होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसी चीज़ का ज़रूरी होता है, वैसे प्लांट्स को भी ज़रूरी होता है। तो मैनर क्या होता है, well decomposed refuse from the stable and burn earths, including both animal extract and straw or other litter. मैनर होता है जो डिकम्पोस्ट होता है, कोई पच जाता है, हमारा वेस्टेज फूड्स, ओके, गोबर सर जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, जो मैनुअली होता है, इज कॉल्ड मैनुअल। एंड फर्टिलाइजर इज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स कंटेनिंग प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। और ये जो फर्टिलाइजर से ये इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में इसको बनाता है, इज ए इंडस्ट्रियल manufactured chemicals. Fertilizer, industrial manufactured chemicals. Okay, so we will understand the difference between manure and fertilizer. The next, yes, fertilizer in agriculture. You can see there 2 different types of photos. One is manure and second is fertilizer. Okay, organic decomposed, non-recyclable papers, food waste, end waste, जो हम लोग क्या है, जो हमारा नेचुरली जो होता है, ऑर्गेनिक होता है, डिकम्पोस्ट से। कोई पेड़ पच जाता है, कोई कुछ जंगली जानवर, जब कोई भी चीज़ जब पच जाता है, उसको से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो इसमें से होता है, ईयर्ड का वेस्टेज होता है। और फर्टिलाइज़र वही है जो फैक्ट्रीज में बनता है, नेचुरल नहीं होता है। अब देख सकते हैं इस पर फर्टिलाइजर भी बहुत पावरफुल होता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल टूल्स। एग्रीकल्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको इस्तेमाल करने के लिए ग्रेफो, ग्रास कटर्स,
आप लोग देख सकते हैं, इसमें बहुत सारा फोटोज है, मैं ऐड किया हो। नेक्स्ट, व्हाट इज इरिगेशन? इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। इरिगेशन सिंचाई बोलते हैं हिंदी में इसको। द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। हम लोग को भी पानी का ज़रूरी होता है, पानी बिना हम लोग भी नहीं जी सकते हैं, तो प्लांट्स को भी पानी का बहुत ज़रूरी होता है उसको जीने के लिए। सो व्हाट इज़ इरिगेशन? द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग, पानी देने का तरीका को क्या बोलते हैं? इरिगेशन। इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड इज इरिगेशन। इट्स मीन द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग, पानी देना। द क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। क्रॉप्स में पानी देना, इसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से बचा कर रखना है, ठीक है। हम लोग इसमें से जर्म से, गंदगी से दूर रहते हैं, तो प्लांट्स को भी इसमें कुछ ज़रूरी होता है, इसको वीड्स से प्रोटेक्ट करना। वीड्स एंड वीडिंग। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. हमारा ज़मीन में हम लोग कुछ खेती कर रहा है, उसके अंदर वो पेड़ छोड़कर दूसरा भी पेड़ कुछ उसमें भी हो जाता है। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं ये तो हमने ही बनाया, वो कैसे आ गया है। सो इज अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। ये अननेचुरली होता है, इसको हम नहीं पौधा किया मगर वो नेचुरली हो गया है। सो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप्स के साथ भी एक साथ में हो रहा है। These undesirable plants are called weeds. ये अनडिजायरेबल जो प्लांट्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीड्स, जंगली घास जिसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस फोटो में आप देख सकते हो someone separating crops from the weeds. Okay. So I hope you will understood. Next, yeah, crops protecting from weeds. देख रहे हैं हम लोग। So next is harvesting. बहुत मेहनत करने के बाद ये हार्वेस्टिंग होता है। बहुत वेट करने के बाद ये हार्वेस्टिंग का टाइम आता है। हार्वेस्टिंग मतलब काटना, इसको काटना है क्रॉप्स को, जब उसको टाइम हो जाता है तब। तो देखते हैं, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स को कटिंग करने को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। आफ्टर इट इज मैच्योर, जब वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के समय हम लोग उसको काट देता है, पक जाता है, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। ये सिर्फ क्रॉप्स में ही होता है हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट इज स्टोरेज। is a last stage of preparation of soil, preparation of crops. Storage of produce is an important task. If the harvested grains are to be kept for a long time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। स्टोरेज का मतलब क्या है? उसको एक जगह पर रखना, स्टोरेज करके रखना है। तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। क्यों? वाई इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट? बिकॉज दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चराइजर, इंसेक्ट्स। बिकॉज उसमें कभी कभी क्या होता है, मॉइस्चराइजर पड़ जाता है, कभी कीड़ा मकोड़ा आ जाता है, कभी छोटा छोटा चूहा आके उसको खा जाता है, माइक्रो ऑर्गन्स हो जाता है। हम लोग जियो में देखते हैं, कभी कभी हम लोग जो बहुत दिन से हमारा घर में कुछ स्टोरेज करके रखा है उसमें से मॉइस्चराइजर पड़ जाता है, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा होता है, माइक्रो ऑर्गन्स होता है, ये सब चीज़ उसको अटैक करता है। तो अच्छे से स्टोरेज करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत मेहनत करने के बाद तो ये होता है स्टोरेज।
हम लोग इतना मेहनत करने के बाद जब वो मॉइस्चराइज पड़ जाता है इनसे कभी पेट्स, तो उसका पूरा असफलता होता है। ठीक है, सो हार्वेस्टेड ग्रेन्स अब मोर मॉइस्चराइज, तो इसको हम लोग को अच्छे से स्टोरेज करके रखना पड़ता है। एंड ऑफ दिस फोटो इज क्रॉप स्टोरेज इन ए विलेज। एक गांव में कैसे क्रॉप्स को स्टोरेज करके रखते हैं, बहुत सुंदर है। इट्स ए ब्यूटीफुल फोटोज। आई होप you will understand the better basic things of how to crops products and management. And thank you very much. If you have any questions, you can ask me. Thank you very much.